اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں پرندوں کو دانہ ڈالنے کے حوالے سے ہے۔ آج میں آپ کو 3 قسم کا صدقہ، 3 قسم کے پرندوں کو ڈالنے کے تمام فائدے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پرندوں کو دیے جانے والے 3 صدقے ہیں جو کہ 3 بڑی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ پرندوں کو دیا جانے والا پہلا صدقہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس صدقے کو کرنے والا دنوں میں دولت مند ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ جبکہ پرندوں کو دیے جانے والے دوسرے صدقے سے دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسرے صدقے کو دینے سے انسان پر نازل ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور انسان ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، پرندوں کو یہ 3 صدقے کس طرح دیے جاتے ہیں اور ان کو دیتے وقت آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایسے نبی تھے جو کہ نہ صرف جانوروں کی بلکہ کیڑے مکوڑوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم ولی اللہ اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی بات کریں تو ہمیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھتے تھے بلکہ بابا فرید بھی چڑیوں اور دوسرے پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک کسان بابا فرید کے پاس آتا ہے، آ کے عرض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال میرے حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال میرے مسئلے اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سخت رزق کی تنگی کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے گھر دولت اور پیسہ نہیں آتا، جبکہ میں سخت محنت کرتا ہوں، کھیتوں میں دن رات ایک کر دیتا ہوں، لیکن میری فصل بھی اچھی نہیں ہوتی، جبکہ مجھ سے کم محنت کرنے والے کسانوں کی فصلیں بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ جو بھی دعا کرتا ہوں میری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ پر کسی نے کچھ جادو کروا رکھا ہے یا میری قسمت ہی ایسی ہے۔ کسان کی بات سننے کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے صدقے ہیں جو کہ پرندوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان صدقوں کو ہر غریب اور امیر بآسانی دے سکتا ہے۔ پرندوں کو دیا جانے والا پہلا صدقہ وہ کوے اور چیل کو دیا جاتا ہے۔ کوے اور چیل کو دیا جانے والا یہ صدقہ انسان پر آئی تمام بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور اگر کسی نے جادو ٹونا اور عملیات کروائے ہیں تو وہ بھی بے اثر ہو جائیں گے، اور اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد انسان کی ترقی اور کامیابی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں آسمان سے بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ عام دنوں میں مغرب کی اذان کے بعد آسمانوں سے بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ فجر کی اذان ہونے تک آسمانوں سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت لے کر آتی ہیں، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں اور کچھ مصیبتیں پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا جب کسی شخص پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ بندہ اپنی ساتھ مصیبت اور پریشانیاں لے کر آئی ہوتی ہے۔ وہ تمام شخص
उसकी ज़िंदगी में आने लगती हैं, जैसा कि वो बला अपने साथ गुर्बत लेकर आई है, तो वो शख्स गरीब से गरीब होता जाएगा। उसके बावजूद कि वो लाख मेहनत कर ले, कभी भी उसके हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक वो बला उससे दूर ना हो जाए। कौवा ऐसा परिंदा है जो कि चालाक और शातिर और मौका परस्त होता है। यही वजह है कि इस्लाम ने कौवे को ज़्यादा पसंद नहीं फरमाया। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी करीम सरवरे कायनात सरकार दो आलम हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौवे को कत्ल करने का हुक्म दिया है, जिसके सर पर सफ़ेद धारी हो। इसी तरह ईसाइयों में भी ये माना जाता है कि कौवा हर मखलूक को देख सकता है जिसको इंसान नहीं देख सकते। इस तरह हिंदू मज़हब में भी कौवे को एक ख़ास मकाम हासिल है। जब कोई हिंदू मर जाता है तो एक रस्म की जाती है जिसे शरात की रस्म कहा जाता है। हिंदुओं का मानना है कि जब भी कोई शख्स मर जाता है तो मरने वाले की रूह इस दुनिया से उस वक़्त तक नहीं जाती जब तक कौवे को खाना ना खिलाया जाए, और इसी रस्म को शरात की रस्म कहा जाता है। हिंदू मरने वाले की तरफ से कौवों को खाना खिलाते हैं। असल में कौवे के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर नाजिल होने वाली बलाओं को उस इंसान से टाल सकता है। इसलिए जब भी किसी शख्स पर बहुत सारी मुसीबतें आ रही होती हैं, उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियां उस पर आती जा रही होती हैं, तो अहले नज़र बुज़ुर्गों की तरफ से यही मशवरा दिया जाता है कि वो कौवों को खाना खिलाएं ताकि इस शख्स पर नाजिल हुई बलाएं अपने साथ ले जाएं, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा। कौवे और चीलों को सदका देने का ठीक तरीका ये है कि आपने बाज़ार से एक मुट्ठी भर गोश्त के छिछड़े ले आने हैं। अल्लाह वालो, एक मुट्ठी गोश्त एक पाव या सवा पाव भी हो सकता है। इन छिछड़ों को पहले आपने अपने घर लेकर आना है ताकि घर में जितनी भी बलाएं मौजूद हैं वो तमाम की तमाम बलाएं इस गोश्त के छिछड़ों पर लग जाएं। उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ से इस गोश्त के छिछड़ों को पकड़ना है, 7 बार अपने सर से वार लेना है और उसके बाद घर से बाहर ले जाकर किसी ऐसी जगह फेंक देना है जहां उसे कौवे और चीलें खा सकें। जैसे ही कौवे और चीलें आकर उन छिछड़ों को खाएंगी, आपके सर पर जितनी भी बलाएं थीं वो तमाम की तमाम आप पर से हट जाएंगी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसले हो रहे थे, जितनी भी परेशानियां उन बलाओं की वजह से आ रही थी, वो तमाम की तमाम तर ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह वालो, इसी तरह आप पर अगर किसी ने जादू के ज़रिए बंदिश लगवाई थी, वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद आपके तमाम रुके हुए काम जो बन नहीं रहे थे वो ऐसे बनने लगेंगे जैसे बनने का हक होता है। लेकिन कौवे और चीलों को सदका देते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस सदक़े को महीने में सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। जबकि परिंदों को दिया जाने वाला दूसरा सदका वो ख़ास रिस्क और दौलत के हवाले से है। इस सदक़े को देने से हर किस्म की बेबरकती और रिस्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और घर में दौलत आने लगती है। ये सदका चिड़ियों को और ऐसे परिंदों को दिया जाता है जो कि शिकारी परिंदे नहीं होते, यानी कि सिर्फ दाना दुनका ही खाते हैं, परिंदों का शिकार नहीं करते। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ीद कहना है कि चिड़िया वो वाहिद परिंदा है जिसे मैंने रात को कभी भूखा सोते नहीं देखा, और उसकी 2 वजूहात हैं। उसकी पहली वजह है कि चिड़िया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मजबूत तवक्कल रखती है। चिड़िया घोंसले से निकलते वक्त ये भरोसा और यकीन रखती है कि जिसने आज के दिन मुझे ज़िंदगी अता की है वो आज के दिन का रिस्क भी मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। जबकि दूसरी वजह यह है कि घोंसले से निकलते वक्त सुबहान अल्लाह का विर्द करती है। सुबहान अल्लाह का विर्द ज़ुबान पर जितना हल्का है तराजू में उतना ही भारी है। सुबहान अल्लाह की फजीलत जानने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप जिस जहान में जितनी भी मखलूक़ें हैं उसको सुबहान अल्लाह की बदौलत रिस्क मिल रहा है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि दोनों वजह से चिड़िया आज तक भूखी नहीं सोई, और जो शख्स भी चिड़िया को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, चिड़िया उसके लिए
रोज़ी में बरकत के लिए दुआ करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बेज़ुबान जानवरों की दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है। जबकि ऐसा शख्स जो चिड़िया को दाना और पानी डालता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उस पर गुर्बत नहीं आने देते। जबकि परिंदों को दिया जाने वाला तीसरा और आखिरी सदका वो ख़ास दुआओं की कबूलियत के लिए है। अगर किसी शख्स को ऐसा लगता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती या फिर उसकी कोई बहुत बड़ी हाजत है जिसे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूल करवाना चाहता है, तो इस शख्स को चाहिए कि वो कबूतरों को दाना और पानी डाले। उसकी ना सिर्फ दुआएं कबूल होंगी बल्कि उस शख्स की जो भी हाजत है, फिर चाहे वो हाजत जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उसकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद मुबारक है, कबूतर वो परिंदा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बल्कि अल्लाह के जितने भी नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, उन तमाम इनसे भी मोहब्बत करने वाला परिंदा है। यही वजह है कि जितनी भी पाक और मुकद्दस जगह हैं, फिर चाहे वो मक्का हो या मदीना हो, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों के मज़ार, आपको तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा तादाद में कबूतर नज़र आते हैं। ये चीज़ कबूतरों की फितरत का हिस्सा है। जैसे ही रात के वक्त कबूतरों की आँख खुलती है तो वो तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करने लगते हैं, और जैसे ही दिन को उठते हैं तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं। यही वजह है कि जो शख्स कबूतरों को दाना डालता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और उसकी दुआएं कबूल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह वालों, आपके साथ भी अगर इन मसाइल में से कोई भी मसला चल रहा है तो आप भी ये अमल शुरू कर दें।